Namaste everyone, welcome back to Gurugram Real Estate. In today's video, we are going to compare and discuss about DLF Ultima versus DLF Skycoat. Both are very good products located in New Gurgaon. हाँ, pricing में अभी थोड़ा सा difference है, and one is being segmented as ultra luxury and the second is a luxury product. And दोनों को at least जब ये लॉन्च हुए थे 12 to 14 ईयर्स हो चुके हैं इनके लॉन्च के टाइम से, एंड डिलीवर हुए भी अराउंड 8 to 10 ईयर्स हो चुके हैं दोनों को. एंड दिस इज़ समथिंग वी कीप ऑन डिस्कसिंग अबाउट कि एज यू नो आई ऑलवेज से कि इट्स बेटर टू गो फॉर माई वन प्रोडक्ट्स, बट ये दोनों माई वन नहीं है जिसमें स्काईकोट की कंस्ट्रक्शन इज स्टिल ओके and DLF Ultima is having one of the best non-Maivan constructions in Gurgaon. सो दोनों न्यू गुड़गांव के प्रोडक्ट्स हैं एंड इनके रेट्स काफ़ी भागे थे इन 23 एंड 24, स्पेशली अल्टिमा. आई हैव सीन इट माई सेल्फ फ्रॉम 11,000 10,500 to 15,000 then 17,000. 17,000 पे अब स्टेबल है, but that's what the point of our discussion is. If you are a first time viewer, we provide you analysis based on the results that we get from the polls. Here is our 17th poll, and in the 17th poll you can clearly see there were 4 options and the winner is by a huge margin DLF Ultima versus DLF Skycoat. So yes, we are going to discuss about that, and we have already prepared a technical document to compare them, and there is few other documents that we have prepared. It's called DLF Ultima versus Skycoat versus New Gurgaon low rise floors, जिसमें से मोस्ट ऑफ द लो राइज फ्लोर्स जो हैं वो DLF के ही हैं, कॉल्ड गार्डन सिटी. एंड अगेन दीज टू प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन रीसेल इन द मार्केट, एंड जो लो राइज हैं वो भी आपके रीसेल में ही अवेलेबल है. इन्वेंट्री बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है. एंड विद द टेक्निकल एनालिसिस लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द ब्रोशर. लेट्स कम टू द Skycoat. If you would go and check out the product from inside DLF Skycoat, it's something that is very unique. I still haven't seen any product like this in Gurgaon when the design is like this. Of course, we know the theme is inspired by Italian and Spanish architecture, and this is something जो इसको एक totally new look देता है, and that is not anywhere in Gurgaon. I haven't seen this kind of appeal to a product, and अभी भी it shows that it's a very classy product. And इसकी theme, of course, you can read Mediterranean theme है, and expensive skydecks हैं. इसके skydeck was at that time, it was probably launched in 2012-13, and at that time skydeck होना, it's a very long running balcony of 6 feet depth, and उस time पे it created a huge appeal from a lot of buyers because इतनी बड़ी running balcony होना at that time was something that was not possible. वो concept नहीं होता था. So that created a very huge appeal, and it became ready to move in 2017-18, मतलब 4-5 years में आपको a lot of people got the possession, and current price is 2.25 around अगर आप 3 BHK देखते हैं. Today we are going to discuss this floor plan, that is 1931, and we are going to compare it against DLF Ultima's 2031 2103. This is also like थोड़ा सा बड़ा है. If you see almost 150 square feet का difference है, but when we will compare the floor plan and everything जहाँ पे आपको अंदर घर पे रहना है, you would see there is a huge difference in the rooms and all that. So we have prepared that as well. We are going to compare the floor plans, and let's start with the brochure. DLF the Skycoat. It's a brochure from 2012. Luxury homes at DLF Garden City. Just reading this again, luxury homes at DLF Garden City. Not DLF Garden City low-rise floors, but at DLF Garden City. So DLF already prepared in 2008 से 2012 के रेंज में. They call the whole New Gurgaon area जहाँ पे भी DLF की टाउनशिप है DLF Garden City. And when you actually see the Gurgaon master plan and the things, the way they are right now planning out, and the way the greenery is, you will understand why it's called Garden City. You will understand the whole concept. And let's discuss this again. You can see DLF Garden City Gurgaon. Not a lot of people will tell you about this because not a lot of people know that DLF Garden City का पूरा ecosystem है जिसको DLF Garden City बोलते हैं. Not enclave, not low rise floors.
its whole thing. And Ultima is also a part of DLF Garden City. Of course, I mentioned that to a lot of people in my consultation, but then since it's on the brochure, I am openly saying this, that there is a big plan from DLF with that. So be more than a resident, be a citizen. Uh, Spread across a generous expanse about 243 hectares large is DLF Garden City, a burgeoning ecosystem in the heart of New Gurugram, steadily shaping up to become one of the most promising examples of infrastructural growth and a well-planned urban setup. So, see, when somebody asks me, like being very clear about that, कहाँ पे better planning है in the whole of Gurgaon? Again repeating this, कहाँ पे कौन से ecosystem में better planning है, including the whole गुड़गांव का अगर हम सिनेरियो लेते हैं, is it golf course road, is it extension road, is it SPR, is it SPR extension, is it Dwarka expressway, or is it New Gurgaon? I would say clearly to you, if you go with the planning, the way the infrastructure has been laid out, the way all those things are, it's very, very, very well planned in DLF Garden City. That is around 300 acres of land, and it's very well planned in New Gurgaon in a lot of sectors. I would not say कि हर एक sector में है, but in a lot of sectors. So this is what they mentioned at that time. 200 families now proudly call it home. There are more than 2000 families, of course, but then, everything that you see on the brochure, हाँ ये आपको अभी 2022 2023 में complete होते हुए दिखेंगी चीज़ें. And still, if you look into that, again reading this, connectivity is unsurpassed. DLF Garden City, because of its strategic location, can boast of seamless connectivity to all nodal parts of Delhi and NCR. Enlisted below are a few salient connectivity facts. So, strategically placed between Manesar and Delhi, Northern Peripheral Road offers better connectivity to West Delhi and the airport. Of course, you guys know. And Northern Peripheral Road, ये again this I am repeating this, ये 2012 का है. 2012 से DLF has been planning all of this. ये मैं अपना analysis नहीं दे रहा हूँ. What I'm telling you, this is you can also see on the brochure, and आप किसी से बात करेंगे, that can tell you the proper facts, so you can read those things. Now, Southern Peripheral Road offers better connectivity to Golf Course and Faridabad. NH8 again. So this also proposed mass rapid transit system from Huda city to going to bolster connectivity with the established Metro Connect network as well. Of course, कि metro से कितना काम हुआ है and all, but then this is what the planning was. Everything that has been said in a location, because at that time nobody wanted to go there. So New Gurgaon at that time was considered Manesar when they were being launched these things, and जिनके पास at that time budget नहीं था, people used to go there at that time New Gurgaon में, and people had no choice, so that's why they were buying that. But DLF at that time as well, the products were not being launched at the market price. Most of the people think DLF 10-15% अभी निकाल रहा है at a premium. 2012 से लेके 2014-16 तक जो भी न्यू प्रोडक्ट्स आए हैं वो 15% प्रीमियम पे ही आए हैं. सो इट्स नॉट समथिंग कि DLF अभी कर रहा है. Just because of the safety of the money and what is currently happening in the market with the way construction is going on, DLF provides you a safety, and उसके लिए 10 to 15% they charge more. So that is what it is. DLF families come first. Again, in a community, they have been in this community concept. So what they show on the brochure, it was delivered in the same way, with Mediterranean architecture where aesthetics are everything. So as I told you, I am still impressed by the design. जब भी मैं इसके पास से निकला हूँ, या whenever I saw it, and had my moment, I still feel the design is amazing. Though construction may people have noted some of the issues with the seepage and all that, and of course, it's a very old construction, and it's a conventional construction, but still the look is something that is different. Even the club, it's a very small club of 20 to 25,000 square feet, but it's a very good club. And if you go inside, the theme, the design, even the tile design, the carpets, everything looks quite different, and for me it's a very unique product. So yeah, it's different, and the main thing is ये आपको 2.25 की रेंज में मिल रहा है. दैट इज 2 crore 25 से 2 crore 30 lakhs में आपको यू कैन गेट a 3 BHK in a high rise if you actually prefer the high rise. But as I already said to you,
We have already prepared this doc to discuss about the low rise floors by DLF only, and this high rises as well. So sky deck, sky club privileges, magnificent exteriors. Yeah, इसमें at that time greenery भी बहुत ज़्यादा थी. You can say of total land parcel, it's around 20 to 22%. Okay, and impressive interiors, of course, that depends on you. That's the brochure. Again, you can see social triggers for ownership at DLF Garden City. 2000 families already there, of course, with new town heights and all the towers that we have, and the even including the regal garden. So these are all the things that are there, and this is whole ecosystem is called DLF Garden City, which is of around 300 to 350 acres. This is the plan. This is around 1930 square feet. So this is the running balcony I was talking about. At that time, it was not common, and this is something that people loved at that time. Like seeing the layout, they just went for it at that time. So yeah, this is the brochure, and okay, are there few pages remaining here? Layout plan again. You can see this whole ecosystem: Newtown Heights, Regal Garden, Skycourt, Ultima, Primus. Before even launching the low rise floors, it was called DLF Garden City. And Garden City का मतलब है garden वाली city. You can see all this greenery. It is really something. And when we will come to technical analysis, you will see that okay, this is the master plan. Now again, there is two blocks. So you can say this is east, this is west. So five towers, and in between there is a 24-meter sector road, another 24-meter sector road, one entry and exit, and one entry and exit here. So it's a clustered land parcel. तो ऐसा नहीं है कि आपको 10 के 10 टावर एंड पूरे का पूरा 13 एकर्स आपको मिल रहा है. But then this is what it is. Master plan pe, of course, you can connect with us if you want to really, if you are you really want to buy and you're looking out for this product. Uh, this is what it is with Skycourt. Let's come to Ultima. So Ultima, I will clearly say, of course, the construction is not my one, but it will still last for at least 25 to 30 years. And अभी तक इसकी construction is top notch, one of the best non-Maivan constructions, and काफ़ी अच्छी construction है. And if you ask me, in the whole of Gurgaon, अगर मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे को माइक्रो मार्केट निकालनी है, in the whole of Gurgaon अगर कोई अच्छी कम्युनिटी है, forget the location for just a second, forget the micro markets. This is a very good community. हाँ 17,000 रेट डिजर्व करता है अभी. I would probably say yes. When we will come to technical analysis, you will see why I'm saying कि अभी भी 17,000 ये डिजर्व करता है. But then when we have other options in the market, and we are okay flexible with low rise or high rise, then it changes the choice. Otherwise, in the whole of Gurgaon, it is one of the best communities to live in. Not societies, communities. So yeah, it is something very different. See this, DLF Ultima offers you modern, ultra modern, yet gracious luxury homes nestled in the lap of nature, neighboring a staggering 1,000 acres of reserved greens. That's why it's called Garden City. 1,000 acres of reserved greens है. तो DLF ने 300-350 acres पे डेवलपमेंट कर रखी है. बाकी उसके अलावा ग्रीनरी ही है. And you guys know what my view about is for the greenery and the upcoming years, and how the market will decide the prices. So it's very important to know these things. The perfect example of fine homes and natural living, grand balconies. Ultima is the flagship project in the DLF Garden City area with world-class amenities and the best luxury home specifications. It is still the best product in New Gurgaon. It is still the best product in New Gurgaon, and it is still one of the best products communities to live in the whole of Gurgaon. So yeah, it is a flagship product located at an iconic address set to become the new luxury lifestyle destination of India. Definitely, we have seen, इसके सामने ही 81 के सामने सेक्टर अगर आप देखेंगे क्या चीज़ें आने वाली है, and what is the next phase of DLF. We have already covered that. You can watch out Privana series as well if you want to on our channel. And yes, sir, again, this is a brochure from 2014. So the ultimate vicinity 81, 81A, इसके सामने क्या है, and DLF Express Greens 82A, the Primus, sector 81 to 95, DLF Garden City, and Regal Gardens, Sky Code, everything. So this was
Launched in 2044. You can see Northern Peripheral Road up, of course. This is not planning, this is delivered. ये सारी चीज़ें हैं, तो ये बहुत पहले चीज़ें बोल के सेल करी गई थी. एंड इफ़ यू गैस हैव बिन ट्रैकिंग द मार्केट, 22 में 11,000 से ये जो 17,000 गया है बिकॉज ऑफ एक्सप्रेस वे कनेक्टिविटी एंड ऑल, CPR पूरा वो, it changed the game for a lot of people, and a lot of people were happy to move away from extension and SPR to New Gurgaon, and especially Ultima. It does carry a lot of weightage, and it has an appeal to a lot of end users as well. So yes, award-winning landscape designer. Of course, it is carrying one of the best greens ratio that you can find in a community in whole of Gurgaon, in whole of Delhi NCR. The ultimate design. This is the layout. This is what they have shown, and yeah, good enough rooms. Of course, we will come to the kitchen because a lot of people in 3 BHK doesn't like the kitchen. We will discuss that on the floor plan. A water fountain. So yeah, this is also a very unique thing. Unique thing इसमें काफ़ी सारी water bodies हैं. If you even just enter the society, it's a lot of water bodies, and it's properly maintained by DLF, of course. Uh, and DLF take care of all its products, even पुराने हो नए हो. This clubhouse, swimming pool, everything has been delivered as was expected, and that's why ये बड़ा भी है. This is the 4 BHK plus servant room, 3 BHK plus servant. We are going to discuss this floor plan. And yes, this is the layout. Very important. It's on a 75-meter road, 12 meter wide. That is almost 100 meters से entry है आपकी, one entry exit. This is second entry exit, first entry exit, second entry exit, and the third entry exit. So this is the west, जहाँ पे आपके 3 BHKs हैं. 3 BHKs आपके 4 टावर हैं, जिसमें आपका ये you can see DLF land भी है for future development. S plus 29 है, still plus 29, a very good ample space. Your tennis court, good enough greenery. Then यहाँ पे आपका G plus 3 है, and this is your layout. This is your EWS. This is also for future planning, future land, and 3 entry exits in the product, 22 acres. But again, this is also divided by 24-meter road cluster hai. So this is east side, this is west side. So एक ही है पूरा 22 acres, but then this is around 11 acres, 11.5 acres, and this is around 10 acres. So it depends on how you see the product. And again, just telling you the point, as I've kept on telling you, लेबल्स पे मत जाइए किसी भी प्रोडक्ट के. डोंट थिंक ये ऐसा है, ये दीनदयाल है, ये लो राइज है, ये वो है. जस्ट सी द प्रोडक्ट, सी आपको क्या मिल रहा है, कितना ओपन स्पेस है, क्या चीज़ें हैं, कैसी प्लानिंग है, क्या प्रोडक्ट बन के मिलेगा. दैट मैटर्स. इसमें भी आई विल जस्ट शो यू वन मोर थिंग. सो आप देख सकते हैं, दिस इज द मास्टर प्लान. ऑफ कोर्स यू कैन नॉट सी रेवेन्यू रोड इसमें, बट द पीपल हु हैव स्टेड देयर, हु हैव गॉन देयर, दे नो कितने रेवेन्यू रोड्स हैं. सो वन रेवेन्यू रोड इज हेयर. It cuts the land parcel from this side, 11 to 12 future land, and then there is one more revenue road जो west के starting में है, west plot के आपके. So revenue road, again, I am saying to you, this is one of the best communities, and revenue road से बेकार नहीं हो जाता है. I have already mentioned this points a long time ago in my previous videos, but I'm just mentioning it to you to understand कि certain चीज़ें आपको किसी और जगह मोटिवेट करने के लिए बोली जाती है, ताकि आप अपनी थिंकिंग से बाहर निकल के उनके प्रॉफिट की तरफ देखिए, कमीशंस की तरफ देखिए. सो प्लीज़ थिंक फॉर योर सेल्फ. पीपल हु यू बिलीव एंड ट्रस्ट, understand what they're trying to say. And this is again the master plan of Ultima. You can see revenue rasta 6.7 meters. There is another revenue rasta here, 4 meters. Okay, this 4K wide revenue rasta, 3 entry exits. So whatever we have been providing you with the technical analysis, it's all from the master plan and the information that we have. So it's all verified information. And let's come to the technical analysis. All brochures are over. Let's come to the technical analysis. DLF Ultima versus DLF Skycoat. 81 sector, 86 sector comparative analysis. DLF Limited luxury versus mid premium high rise. So yes, Skycoat is luxury as well, but Ultima is ultra luxury, if you want to call Skycoat luxury. So launch year 2014 2012.
पोजेशन 1920 में आया था आफ्टर 5 ईयर्स, 1718 में आपको स्काई कोर्ट में कुछ टावर्स में आ गया था। पोजिशनिंग प्रीमियम लग्जरी है, यहाँ पे मिड प्रीमियम लाइफस्टाइल है। ऑफ कोर्स द डिज़ाइन इज़ वेरी यूनिक बट स्टिल अल्टीमा इज प्रीमियम लग्जरी। सेक्टर 81, सेक्टर 86, टोटल लैंड पार्सल 22.3 एकर्स, DLF थर्ड स्काई कोर्ट 13 एकर्स। टोटल यूनिट्स आप ये ज़रूर नोट कीजिए, 922 यूनिट्स हैं, 922 यूनिट्स एंड 22.3 एकर्स। डेंसिटी कितनी निकल के आती है? 42 यूनिट्स पर एकड़। दिस इज़ वन ऑफ द लोएस्ट डेंसिटी इन ऑल ओवर द इंडिया। आपको अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 40 यूनिट्स पर एकड़ की डेंसिटी, 42 यूनिट्स की एकड़ की डेंसिटी कभी भी आए तो दैट इज़ वन ऑफ द लोएस्ट डेंसिटीज इन ऑल ओवर द इंडिया, लेट अलोन बी गुड़गांव। 13 acres, 684 units, 53 units per acre. Again, not bad, but 53, 54, 55 is common and उस टाइम पे भी it used to be a mid बोला जाता था। अब रेंज बढ़ गई है, अब आपको 80 यूनिट्स पर एकड़ आ रहे हैं न्यू लॉन्च में, जिसको मिड डेंसिटी बोला जा रहा है। बट एट दैट टाइम 40 was the standard, 40 to 45, 55 to 60 was mid density and 80 was high density, and that's how it was. Now of course it has changed, you guys know. टावर्स 10 टावर्स हैं यहाँ पे स्काई कोर्ट में इन 13 एकर्स। 22.3 एकर्स में आपके अराउंड 15 टावर्स हैं। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली 15 है, 4 आपके वेस्ट प्लॉट में हैं एंड 10 to 11 आपके ईस्ट प्लॉट में हैं। ठीक है, थीम मॉडर्न लग्जरी लैंडस्केप इकोसिस्टम है, मेडिटेरेनियन थीम है, स्टिल अ वेरी यूनिक प्रोडक्ट, स्टिल अमेजिंग टू लिव इन, स्टिल वेरी डिफरेंट एंड डिज़ाइन वाइज। ओपन स्पेस डिस्कस कर लेते हैं। अगेन ओपन स्पेस पे वी हैव डिस्कस्ड ओपन स्पेस पर कैपिटा, वी विल कम इनटू द more depth full technical measures, but if you haven't seen the video A gift for end users and if you're watching us for the first time, please go and check out that video. In that video you can learn a lot about community living and the way the planning is there. and इसमें आपका जो ओपन स्पेस है अल्टीमा का, दिस इज 82%, स्काई कोर्ट में 75% है, बिकॉज थोड़ी सी डेंसिटी ज़्यादा है एंड टावर्स ऑफ कोर्स ज़्यादा है। 3 to 4 BHK है आपका अल्टीमा में, 3 BHK अलग हैं एक्सेप्ट द ई टावर दैट इज इन द वेस्ट एंड द ईस्ट क्लस्टर। सो आपके ऑलमोस्ट ईस्ट क्लस्टर में ईस्ट वाले जो प्लॉट है उसमें आपके सारे 4 BHK हैं, 3 BHK आपके वेस्ट क्लस्टर में है। देर इज़ अ सिंगल टावर जो आपका ई टावर है दैट इज़ नियर टू द क्लब हाउस, जो आपका 3 BHK है इन द ईस्ट वो। So primarily 3 BHK हैं, it's only 3 BHKs in different sizes, in 3-4 sizes, 1846, 1848, 1861, 1931, and आपके there are different sizes from 1900 से without servant, very limited inventory, to 2100 to 2300, 2400, 4 BHKs and all। दोनों में 4 फ्लैट्स पर फ्लोर हैं, 2 to 3 लिफ्ट्स हैं, यहाँ पे 2 लिफ्ट्स पर टावर है, 2 to 3 लिफ्ट्स इसकी फास्ट है। I mean, if you count the time to go from S still to 29th floor, very fast lifts, very good lifts. Sky Court में lifts थोड़ी सी पुरानी है and these are okay. Now this is one very important factor. As you guys know, I have kept on repeating कि अगर दीनदयाल में 9-10 मीटर के रोड है तो उससे क्या फ़र्क पड़ गया, इट्स नॉट अ बिग थिंग जो बहुत ज़्यादा बताया जाता है। बट as and also I have told you guys that 6 से 6.5 मीटर के स्टैंडर्ड रोड होते हैं, द टेंडर पाथ दैट इज देयर इन द मास्टर प्लान। तो स्काई कोर्ट में आपका 6 to 6.5 मीटर है। अल्टीमा में आपका जो इसको बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाता है, एक हाई राइज में 7.5 मीटर के वाइड रोड है। दैट इज अ साइन ऑफ एन अल्ट्रा लग्जरी प्रोडक्ट कि आपको हाई राइज में इंटरनल रोड भी 7.5 मीटर का दिया गया है, एंड दैट्स वाई अल्टीमा स्टिल कैरीज अ लॉट ऑफ वेटेज। इफ़ यू गो इनसाइड, इफ़ यू ड्राइव, इवन दो इट्स अ लूप, बट उसमें आपको पता चलेगा कि 1-1.5 मीटर के फ़र्क होने से हाई राइज में इतना स्टैंडर्ड में फ़र्क आ सकता है। सो दैट्स वाई 9-10 मीटर और 12 मीटर में पीपल से कि लो राइज में अगर 12 मीटर है तो इट्स बेटर, ऑफ कोर्स इट्स बेटर, बट द प्राइसिंग ऑल्सो डिपेंड्स। सो इसको एक अल्ट्रा लग्जरी वैल्यू भी देते हैं इसके रोड्स भी, एंड यू विल नॉट हेयर अबाउट दिस फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल। ओके, ग्रीन एरिया अगेन 7+ एकर्स ग्रीन है। रिपीटिंग दिस, 22.3 एकर्स में 7+ एकड़ ग्रीन है। वॉट डज दैट मीन? आपका ऑलमोस्ट 30% आपका ग्रीन एरिया है पूरे प्रोडक्ट में। एंड ये you can go check out Privana, you can go check out a lot of other products, you can check out the best communities in Gurgaon। बहुत कम प्रोडक्ट्स हैं
जिसमें आपका 30% से ज़्यादा ग्रीन है टोटल लैंड पार्सल पे। तो आपको 22 एकर्स में 7+ एकर्स का ग्रीन मिल रहा है। ये गुड़गांव नहीं, ये पूरे दिल्ली एनसीआर, पूरे इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट रेशियोज है, वन ऑफ द टॉप कम्युनिटीज़। अगर आप देखेंगे कि ग्रीनरी कहाँ है, एंड एज आई केप्ट ऑन टेलिंग यू, ग्रीनरी अंदर बाहर बहुत ज़्यादा मैटर करेगी आगे आने वाले सालों में। एंड इफ़ यू गो इन साइड अल्टीमा, यू चेकआउट द प्रोडक्ट, यू चेकआउट की फील कैसी है विद ऑल द ट्रीज दैट आर फाइनली ग्रोन अप, द वे द ग्रीनरी इज, इट फील्स वेरी गुड। एंड वो ही उस चीज़ को पॉजिटिव बनाता है। तो ग्रीनरी 30% रेशियो होना इज इंपॉर्टेंट। स्काईकोट में कम नहीं है, बट इट्स 20%, 19 to 20%। तो आपका 13 एकर्स में वी हैव 2.4 से 2.5 एकर्स ग्रीन, एंड दिस इज़ ऑल्सो नॉट बैड। मतलब आप न्यू मॉडर्न जो लॉन्चेस हैं उनमें देखेंगे तो उसके कंपेयर तो काफ़ी बेटर रेशियो है ये भी। बट अल्टीमा जस्ट किक्स इट आउट ऑफ द पार्क, दिस इज लाइक नेक्स्ट लेवल, 7+ एकर्स ऑफ ग्रीन होना। जस्ट इमेजिन दिस कि सेंट्रल ग्रीन, हर जगह ग्रीन ही है। क्लब हाउस, वी नो DLF अल्टीमा का क्लब हाउस इज कॉल्ड क्लब अल्टीमा, 50,000 से 50,000 स्क्वायर फीट है। अभी अगर आप मॉडर्न जो क्लब हाउसेस बनेंगे या न्यू क्लब हाउसेस बनेंगे उनके हिसाब से आपको लगेगा कि नहीं है, बट स्टिल एन अमेजिंग क्लब हाउस। 50 से 55,000, ऑलमोस्ट 1.2 एकर्स का क्लब हाउस है। इट मैटर्स। ये आपका 22,000 से 25,000 का क्लब हाउस है। इट्स अ ओल्ड क्लब हाउस स्काईकोट का, बट इसमें भी एक यूनिक चार्म है। इफ यू गो इनसाइड एंड सी द टाइल डिज़ाइन, द वॉल डिज़ाइन, इट मेक्स यू फील गुड। सो दोनों क्लब हाउस बहुत अच्छे हैं, बट ऑफ कोर्स द मॉडर्न अल्ट्रा लग्जरी क्लब हाउस आपका अल्टीमा में है, क्लब अल्टीमा। गुड साइज, गुड एमेनिटीज़, वाटर बॉडीज इज ऑल्सो यू गैस नो, बहुत सारी जैपनीज थीम एंड बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं जो लेक एंड सारी चीज़ें बोली जाती हैं, बट इसमें उस तरीके की मार्केटिंग नहीं है। बट बहुत सारी वाटर बॉडीज़ हैं जो आपको नेचुरली अच्छा फील कराती हैं विथ दैट मच ऑफ ग्रीनरी। सो दैट्स वाई पीपल स्टिल वॉन्ट टू बाय। एंड ऐसे प्रोडक्ट्स बहुत कम बनते हैं, बीइंग ऑनेस्टली स्पीकिंग, डूइंग द एनालिसिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड वो रेट्स उनके डिसाइड करते हैं। दैट्स वाई यू सॉ दैट बिग जंप फ्रॉम 11,000 to 17,000 व्हेन पीपल एक्चुअली अंडरस्टूड कि न्यू लॉन्चेस में क्या आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है। सो दैट मैटर्स। इसकी अभी भी लाइफ 25 ईयर्स की बची है। 10 ईयर्स हो चुके हैं, 8 to 10 ईयर्स, एंड इट्स स्टिल अ वेरी गुड कंस्ट्रक्शन इन अल्टीमा। आपकी वाटर बॉडीज ऑफ कोर्स लिमिटेड है, एंट्री एग्जिट मल्टीपल है, 3 है। यहाँ पे आपकी कॉम्पैक्ट प्लानिंग है, 2 है। एंड लग्जरी फील हाई है, यहाँ पे मॉडरेट प्रीमियम है, यूनिक है, आई वुड से यूनिक फील। एंड लग्जरी फील बहुत ज़्यादा हाई है अल्टीमा में, इवन विद द फसाड एंड एवरीथिंग। लिवेबिलिटी स्कोर एक्सेप्शनल है, दैट्स वाई पीपल स्टिल वांट टू मूव। एंड न्यू गुड़गांव में कोई बात करता है तो इट्स अल्टीमा ओनली, एंड इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। DLF ने जो बोला था वैसे ही डिलीवर किया है, उससे बेटर ही डिलीवर किया है। लिवेबिलिटी गुड फॉर डेंसिटी कैटेगरी, डेंसिटी इज ओके, बट देन लॉट ऑफ पीपल डजंट वांट टू लुक इनटू इट। एंड थोड़ा सीपेज इशूज थे कंस्ट्रक्शन में, लोगों ने कंप्लेंट करी थी। तो 12 से 12,500 का रेट है एक जगह, यहाँ पे आपका 17 to 17.5K पर स्क्वायर फीट प्राइस। यहाँ पे आपका 12 से 12.5K पर स्क्वायर फीट। एंड जो लोगों की बजट में रेंज में आ रहा है वो यही है, 2.25 2.3 CR के बहुत सारे अराउंड 2 करोड़ के बजट के लोग हैं, एंड वो इसमें देख रहे हैं। बट इफ़ यू आर लुकिंग इनटू इट, यू कैन कनेक्ट विथ मी फॉर अ कंसल्टेशन, इट विल मैटर। मैं आपको काफ़ी अच्छे से एडवाइस दे सकता हूँ। सो डेंसिटी एंड ओपन स्पेस पे हम आ जाते हैं। अगेन प्लीज गो एंड चेक आउट द वीडियो, गिफ्ट फॉर एंड यूजर्स। 42 यूनिट्स पर एकड़ है। मोस्ट गुड़गांव हाईरेस कम्युनिटीज़ में 50 से 90 है, तो अल्टीमा सिट्स वेरी वेल बिलो दैट, 40 यूनिट्स, 42 यूनिट्स। स्काईकोट भी कम नहीं है, बट थोड़ा डेंसर है, दैट इज़ 53 to 55 यूनिट्स पर एकड़। एंड ओपन स्पेस पर कैपिटा पे हम आ जाते हैं। सो एज यू गाइज नो, अल्टीमा में बड़ा साइज है 1900 से 2100। तो मैंने दो कैलकुलेशन ली है, 4.5 से 4। सो अगर हम मानते हैं कि एक घर में, एक फ्लैट में, एक यूनिट में आपके 4 लोग रह रहे हैं, तो ओपन स्पेस पर कैपिटा निकल के आता है 215 स्क्वायर फीट। यस, आई एम रिपीटिंग इट, 215 स्क्वायर फीट का ओपन स्पेस पर कैपिटा है। ये क्या, इसका क्या मतलब हुआ? आपका ओपन स्पेस अभी के अल्ट्रा अल्ट्रा लग्जरीज से ज़्यादा है इसमें, एंड दैट मैटर्स अ लॉट, क्योंकि अभी भी लोग जाना चाह रहे हैं। एंड आपको अंदर जाके फीलिंग अच्छी समझ आएगी, बट वो फीलिंग इस मेजर में हम निकालते हैं ओपन स्पेस पर कैपिटा। सो आपका जो ओपननेस है पर पर्सन आपको 200 स्क्वायर फीट से ज़्यादा मिल रही है। तो आपको 200 स्क्वायर फीट से किसी भी कम्युनिटी में ज़्यादा मिल रही है, आपको अच्छा ही लगने वाला है, काफ़ी अच्छा लगने वाला है।
एंड अगर हम मानते हैं कि सारे बड़े साइज है, 4 की जगह 4 पीपल की जगह 4.5 लोग रह रहे हैं, 4.5 पीपल आर लिविंग इन अ सिंगल यूनिट, तो उसका भी ओपन स्पेस पर कैपिटा निकल के आता है 190 स्क्वायर फीट पर पर्सन। और मैं इसमें अगर EWS भी हटा देता हूँ 5 to 7% आपका मैं रिड्यूस कर देता हूँ, क्योंकि EWS का एक टावर है वो भी थोड़ा एरिया लेता है, तो भी 200 स्क्वायर फीट आता है एंड 4.5 पीपल में 180 स्क्वायर फीट। सो दिस मेजर्स, यू कैन गो एंड चेक आउट ऑल ऑफ माई वीडियोज़। आपको बहुत कम कम्युनिटीज़ दिखेंगी जो इतना आपको ओपन स्पेस पर कैपिटा दे रही है, एंड दैट्स वाई इट स्टिल मेक्स इट, even though construction वाइवन नहीं है, it still makes it the one of the best communities to live in whole of Gurgaon, with the amenities, with the clubhouse, with the openness, with the greenery. It's not a match, you know. It is something. That's why I'm telling you, it carries a lot of weightage, and it is a landmark product of the whole ecosystem of DLF Garden City, जो अभी 350 acres में है, and it could turn out to be 500 plus acres or 600 acres. So interpretation, this is genuinely exceptional for a Gurgaon high-rise community. Even after realistic population loading, the project remains breathable, spacious, psychologically luxurious. आपको एक लग्जरी बताई जाती है टाइल्स दिखा के, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा के, बट एक्चुअल लग्जरी इज ओपननेस, ग्रीनरी। तो उसमें देयर इज नो वन जो इसको कंपेयर कर सकता है, दैट्स वाई इट मैटर्स। स्काईकोट पे आ जाते हैं, ओपन स्पेस पर कैपिटा 4 पीपल पर यूनिट हमने लगाया, 4.5 की जरूरत नहीं है, छोटा साइज है, सारे 3 BHK हैं, तो 155 स्क्वायर फीट निकल के आता है। तब भी आप अभी के भी अल्ट्रा लग्जरी प्रोडक्ट्स जो निकल के आ रहे हैं, यू कैन गो एंड चेक आउट इवन द वीडियो, इवन माई वीडियो ऑन बेस्ड ऑन द DLF Privana। आपका ओपन स्पेस पर कैपिटा इसका भी 150 से 155 आ रहा है, एंड आप अगर EWS भी एडजस्ट कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे 5 to 7%, तो भी 145 आता है, विच इज स्टिल एन अमेजिंग मेजर। Good by interpretation, Gurgaon standards, but clearly below Ultima's luxury livability benchmark. So Ultima is luxury plus livability. That is a few communities in Gurgaon are presenting to you, and the whole of India as well. So Skycourt still feels reasonably open because unit size are decent, tower count is controlled, and 75% open area is still quite decent. So spatial exclusivity is lower than Ultima, of course. Planning and spatial philosophy, it's more like आपको we are trying to put words जो आपको अच्छी फीलिंग आती है कम्युनिटी में जाके। तो अल्टीमा was designed around lower perceived crowding, low crowd, larger movement corridors, 7.5 meter roads, landscape dominance, greenery, central greens, water bodies, premium arrival experience। अंदर जाते ही you would know this is a different world, community living plus luxury psychology, so it matters। तो इसको आप बोल सकते हैं horizontal luxury translated vertically। It's 7.5 meter roads, massive greens, clubhouse scale, water bodies, tower spacing, again अर्बन हाई रिस्क कंप्रेशन इफेक्ट, ये सारी चीज़ें रिड्यूस करते हैं, एंड इट गिव्स यू अ बेटर फील। अगर आप अंदर जाके देखेंगे, डोंट चेक आउट द वीडियो, गो एंड पर्सनली फील दैट। DLF स्काईकोट अगेन इट्स एफिशिएंट है, कैपिटल ऑप्टिमाइज्ड है, फैमिली ओरिएंटेड प्लानिंग मॉडल है, मेडिटेरेनियन थीम है, विजुअल सॉफ्टनेस है, आइडेंटिटी है, यूनिक है, and it's very well planned premium efficiency development rather than ultra luxury spatial planning. Investment pay, so we have prepared this document, we will have this on the separate videos। We have counted the returns of DLF Ultima जब 2014 से लॉन्च हुआ था, करंट एट प्रेजेंट करंट क्या उसके रिटर्न्स हैं against gold, silver, FD, and similarly we have done the same investment analysis for DLF Skycoat। So it's also an eye opener for you, to understand कि investment क्या है। But let's just let me tell you this, 7 से 7,500 की लॉन्च प्राइस थी, स्काईकोट 6 से 6,500, एंड अप्रॉक्स एप्रिसिएशन आपका 2.38 टाइम्स है, मतलब आपकी ऑलमोस्ट 2.5 गुना हो गई है वो प्रॉपर्टी। स्काईकोट आपका ऑलमोस्ट 2x हुआ है, तो आपका हेडलाइन CAGR 7.5%, 5.7%, इफेक्टिव IRR आपका 11 से 13 है। वी विल कम इन टू दिस, बट या आपका ऑलमोस्ट दोनों डबल से ज़्यादा हुए हैं। स्काईकोट थोड़ा सा लैग कर रहा है अभी भी, एंड देर इज़ अ रीज़न थोड़ा सा लैग कर रहा है, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू बाय और यू आर लुकिंग आउट फॉर दैट, यू कैन कनेक्ट विद अस। पेमेंट स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंस था, वी विल कम इन टू दैट। रियल लग्जरी वर्सेज रियल एफिशिएंसी, I would say if there is something called real luxury in a community living, then DLF Ultima is that। I know it's not Maivan Construction, and मैं खुद बोलता हूँ हाई राइज में Maivan Construction नहीं मिल रही है, तो don't go for it, but for living 25 years you can live your best life, irrespective of the micro market that you want to live in a community, if you want to live in, this is one of the best communities, and it offers a great value। तो अगेन स्ट्रॉन्गर लॉन्ग टर्म पोजिशनिंग है। लॉन्ग टर्म पोजिशनिंग क्या होता है?
आपके प्रोडक्ट में सारी चीज़ें अच्छी हैं, मार्केट उस टाइम नहीं डिसाइड कर पा रही है। आप सोचिए 2014 में लॉन्च हुआ हुआ प्रोडक्ट 2021 में भी 7 साढ़े 7 हज़ार में जो आया था, आपको 10 साढ़े 10 11 हज़ार में मिल रहा था उस टाइम पे। बट लॉट ऑफ पीपल वर नॉट हैप्पी विद द लेआउट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, वी विल कम इन टू दैट। बट स्टिल एज अ प्रोडक्ट इट इज़ अ वेरी स्कार्स प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट बहुत कम होते हैं। स्काई कोट आपका मिड प्रीमियम प्लानिंग है, डिफरेंट यूनिक डिज़ाइन है, कैपिटल डिप्लॉयमेंट आपका अच्छा था, फैमिली इकोसिस्टम है, और उस टाइम बहुत यूएसपी था उसका, वो लॉन्ग रनिंग बैल्कनी ऑफ यू कैन से ऑलमोस्ट 250 स्क्वायर फीट की लॉन्ग, 300 स्क्वायर फीट की रनिंग बैल्कनी वॉज नेवर देयर। फाइनल सुपीरियर लग्जरी एंड लिवेबिलिटी एसेट है, स्ट्रॉन्गर एप्रिसिएशन दिया है, लोअर डेंसिटी है, बेटर ओपननेस है, एंड ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म में इन सबको दिखती हैं। मे बी टेक्निकल एनालिसिस में नहीं समझ आए, कोई समझा रहा है, बट आपको पर्सनली जाके वो अल्टीमेटली जो अच्छा प्रोडक्ट है वो लॉन्ग टर्म में गेन करता ही है, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विद अल्टीमा। तो सुपीरियर लग्जरी एंड लिवेबिलिटी एसेट, एंड स्काईकोट इज मोर एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर है। तो छोटी एंट्री कॉस्ट थी 1.2 की, स्मार्टर पेमेंट था, आपका प्लान अच्छा था। नाउ सोफेस्टिकेटेड इंसाइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टू प्रोजेक्ट्स डेमोन्स्ट्रेट करते हैं एक बहुत बड़ी रियलिस्टिक ट्रुथ, व्हाट डेंसिटी एंड ओपननेस इन्फ्लुएंस लॉन्ग टर्म प्रीमियम परसेप्शन मोर देन ब्रांडिंग अलोन। दोनों ही डीएलएफ के प्रोडक्ट्स हैं। स्काई कोड आपका अभी भी 12 साढ़े 12 हज़ार पे लैक कर रहा है, 6 हज़ार में आया था, 6.5 में 2x भी नहीं हुआ है। जबकि आपका अल्टीमा अभी भी लोगों को डिमांड है, दे वांट टू रेंट इट आउट, दे वांट टू बाय। 3.5 करोड़ का प्रोडक्ट कोई ज़्यादा अभी कर नहीं पा रहा है विद द करेंट सिनेरियो इन द वर्ल्ड, but still people are still looking at it and still it's a good product. Why? Because density and openness, open space per capita, the measure we discussed in density, influence करते हैं लॉन्ग टर्म प्रीमियम परसेप्शन। आपको अगर कोई अच्छा प्रोडक्ट मिल गया, उसको रख के बैठो आप, उसको बढ़ने दो, मार्केट अभी नहीं देख पा रही है, 1 1.5 साल 2 साल बाद लॉन्ग टर्म में वो दिखता ही है, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड विद अल्टीमा, एंड अभी भी इट्स वेरी अंडररेटेड आई वुड से। ऑफ कोर्स द रेट्स 17,000 रेट्स पे हम बाद में आएंगे, बट आपको जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं करेंटली 17 80,000 में जो न्यू लॉन्चेस है, उनसे बहुत बेटर प्रोडक्ट है ये। सो इट्स योर कॉल, वी कैन डिस्कस मोर अबाउट योर इन्वेस्टमेंट और एंड यूज इफ यू वांट टू, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है इवन विद द सेम डेवलपर। बेटर स्पेशियल प्लानिंग, लोअर डेंसिटी एंड स्ट्रॉन्गर ओपननेस रेशियोज क्रिएट अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन एप्रिसिएशन ट्रेजेक्ट्रीज, इमोशनल एक्सपीरियंस, आपको जो अंदर जाके अच्छा लगता है। लॉट ऑफ पीपल हैव सेड टू मी अंदर जाके इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड, एंड लग्जरी पोजिशनिंग। So yeah, this was our technical analysis. There is another doc that we have prepared before coming to the floor plans. Let's discuss this. Uh, let's discuss this in after comparing the floor plan, and let's just discuss the floor plan first, because a lot of people have complained about that uh, DLF's 3 BHK plan is not good. So we will come into that. Skycoat, people still think most of the ones that are living there, it's a good floor plan. But yeah, it is what it is. And so let's start. 11 by 11 का आपका लिविंग रूम है. यू कैन ईजिली पुट अ 5 सीटर सेटअप हेयर. यहाँ पे सोफा 3 सीटर सोफा एंड वन सिंगल, सो डिसेंट इनफ. 120 आपका ये हो गया. आप अगर इधर देखेंगे आपका लॉबी और द डाइनिंग एरिया, दिस इज अराउंड 14 by 12. सो आपका एक जगह 165 स्क्वायर फीट प्लस 120 स्क्वायर फीट, तो आपका पूरा ये जो लिविंग और डाइनिंग है इंक्लूडिंग द लॉबी, द फॉयर एरिया लगा के अराउंड 300 स्क्वायर फीट का हो गया. एंड इट्स 1930 आपका यहाँ पे है. 2100 में एज यू गाइज नो लिविंग रूम काफ़ी स्पेशियस है. सो 23 है. सो आप अगर इसको लगाएंगे, इसका टोटल एरिया इट्स ऑलमोस्ट 330 स्क्वायर फीट, 320 स्क्वायर फीट, एंड वेरी स्पेशियस. एंड इसके अलावा आपका यहाँ पे स्पेस भी है. दिस इज अराउंड 11 by 7, तो 70 स्क्वायर फीट यहाँ हो गया एंड 300 यहाँ हो गया. तो दिस इज अराउंड 370 स्क्वायर फीट का स्पेस वर्सेस DLF स्काई कोट में 300 स्क्वायर फीट. सो इन अल्टीमा यू आर गेटिंग अ वेरी बिग हॉल एंड डाइनिंग लिविंग रूम, एंड इट इज़ अ वेरी प्लस पॉइंट इन दिस वन. एंड देर इज़ ऑल्सो सर्वेंट रूम. आपका स्काई कोट में सर्वेंट रूम नहीं है, बट सर्वेंट रूम का आप साइज देखेंगे तो इट्स क्वाइट नाइस. 9 by 8 का सर्वेंट रूम है, दैट इज around 65 square feet, and you can say 70 स्क्वायर फीट. एंड ड्रेसर भी है जो आपका
टॉयलेट आप बोल सकते हैं, सर्वेंट वॉशरूम और यूटिलिटी वॉशरूम, दिस इज़ अराउंड अराउंड 25 स्क्वायर फीट। तो ये दोनों लगा के आप देखेंगे तो 100 स्क्वायर फीट यहाँ पे कारपेट है। एंड यू कैन ऑल्सो यूज दिस एज योर ऑफिस स्पेस। सम पीपल हैव ऑलरेडी यूज्ड इट एज एन ऑफिस स्पेस इफ दे डोंट वांट टू हैव एन हेल्पर और एनीवन टू बी देयर। सो ऑफिस के लिए काफ़ी अच्छा सेटअप है, 100 स्क्वायर फीट टोटल। एंड let's come to the master bedroom. So yeah, let's come to the kitchen because a lot of people have complained about it. This for me is still an okay kitchen. दिस वॉल आप इसको ओपन करा सकते हो, इस वॉल को, इट्स नॉट लाइक यू कैन नॉट मेक इट ओपन। आप ओपन करा के इसका काफ़ी बड़ा लेआउट कर सकते हैं। अ लॉट ऑफ पीपल हैव कंप्लेंट कि जो डीएलएफ ने मॉड्यूलर किचन बना के दिया है वो काफ़ी छोटा है, इवन दो सारी चीज़ें हैं, बट इट्स स्टिल अराउंड 80 स्क्वायर फीट। एंड आई डोंट थिंक सो 80 स्क्वायर फीट का किचन फॉर अ 3 BHK, हाँ फ्लैट का साइज थोड़ा सा बड़ा है बिकॉज ऑफ द सर्वेंट रूम, इट्स नॉट दैट शॉर्ट। आप इसको ओपन करा सकते हैं यहाँ पे एंड इट्स स्टिल अ गुड अ किचन। सो 82 स्क्वायर फीट का किचन है यहाँ पे। स्काई कोट में आपका किचन थोड़ा सा बड़ा है, इट्स ऑलमोस्ट 8x11, सो यू कैन से अराउंड 90 स्क्वायर फीट का किचन है। इट्स एम्पल इनफ स्पेस, 90 स्क्वायर फीट वर्सेस 82 स्क्वायर फीट। सो आप स्काई कोट के लिए स्काई कोट के अगेंस्ट कंपेयर करेंगे तो येस, अल्टीमा का किचन छोटा है बिकॉज ऑफ द वे दे हैव प्लान्ड इट। हाँ किचन बड़ा हो सकता था, बेटर प्लान हो सकता था, बट इट इज़ वॉट इट इज़। एंड काफ़ी लोगों ने इसको ओपन करा के बहुत अच्छे से डिज़ाइन कराया है। सो यू कैन ऑल्सो लुक इन टू दैट इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय और इफ़ यू आर ऑलरेडी लिविंग देयर। एंड यूटिलिटी बैल्कनी है, इट्स क्वाइट डिसेंट। इफ़ यू आस्क मी, इस यूटिलिटी का साइज इज़ अराउंड 30 से 35 स्क्वायर फीट है। आप प्रॉपरली अपना प्लांटर्स रख सकते हैं, वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, इट्स गुड इनफ एम्पल स्पेस। स्काई कोट में जो आपकी ऑफ कोर्स वी देयर इज़ नो सेपरेट बैल्कनी, एक रनिंग बैल्कनी है जिसका साइज इज़ 250 से 260 स्क्वायर फीट है। एंड इट्स ऑलमोस्ट अ लॉन्ग रनिंग बैल्कनी एंड इट फील्स क्वाइट नाइस। अल्टीमा, it's okay, it's good. We have 5 balconies in Ultima, one in living room, one in utility, and one in each room. So it's like each and every room has its own separate balcony, one in living room and one utility. So 5 balconies versus a single running balcony. So that's a totally different choice. Again, किचन एंड हॉल के अगर आप पूरा देखेंगे, द स्पेस दैट यू हैव, अल्टीमा ऑफ कोर्स 150 स्क्वायर फीट आपका सुपर बिल्टअप एरिया ज़्यादा है, बट देन किचन एंड द होल लेआउट इज़ अमेजिंग। नाउ एज यू गैस नो फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो आई हैव बीन सेइंग, मेरे को थोड़े से रूम अगर छोटे हो मास्टर बेडरूम के अलावा, आई एम हैप्पी, बट सम पीपल प्रिफर बिगर रूम्स एंड स्मॉलर हॉल। तो अल्टीमा में आपका अगेन जो सेटअप है, इट्स मोर लाइक छोटे रूम थोड़ा सा एंड बिगर लिविंग एंड डाइनिंग। And in Sky Court, living and dining is okay, it's decent, 280 to 290, 300 square feet. But यहाँ पे आप देखिए 5 सीटर है। In Ultima, you can easily have 8 to 10 सीटर setup easily. It's that spacious. So बहुत बड़ा difference है। And if you see the glass window, काफ़ी ample light अंदर आती है। It's around 10, you can say it's around 12 स्क्वायर फीट जो आपका ग्लास विंडो है, तो एम्पल लाइट आती है। स्काई कोट में भी इट्स अ वेरी गुड रेशो, यू कैन सी हेयर अराउंड 10 स्क्वायर फीट की ग्लास विंडो है। बट अल्टीमा में ऑफ कोर्स इट्स मोर एरी, इट्स मोर वेंटिलेटेड एंड इट इज़ व्हाट मेक्स इट्स अ लग्जरी kitchen. I again, I cannot do anything. That's what the way DLF sees if somebody is buying this kind of an apartment, they may not cook a lot, and that's why in most of their layouts they provide a smaller kitchen and you can make it open. But overall clear winner living and dining mein, and of course an additional servant room is there. Now let's come to the second bedroom. This is 10 by 12. You can say it's a kid's bedroom. Moreover, as you guys know, I am not a big fan of 3 rooms together. So DLF Sky Court has one guest room or a parents room and 2 rooms together. So this for me is the best setup for the long term. नहीं तो आपको अल्टीमेटली 5 से 8 साल बाद अगर आप ले लेते हैं तो 10 साल बाद यू गेट इन टू द जोन वेयर आई नीड मोर प्रिवेसी, आई नीड माई ओन स्पेस, वो होता है। एंड स्काई कोट में वन थिंग इज अमेजिंग, आपका एक अमेजिंग मास्टर बेडरूम है, सेकंड किड्स रूम है, देन अ लॉट ऑफ गैप, देन द थर्ड रूम, दैट्स अ परफेक्ट 3 BHK सेटअप। अल्टीमा में आपके तीनों रूम साथ हैं, विच इज समथिंग दैट बॉदर्स मी व्हेन इट कम्स टू प्रिवेसी एंड व्हेन समबडी गेस्ट इज कमिंग।
उनको भी अपना स्पेस नहीं मिलता, हमें भी नहीं मिलता, दिस इज समथिंग। तो आपका 10x12 का रूम है, 120 स्क्वायर फीट का रूम है। यहाँ पे आपका जो किड्स रूम है इट्स अराउंड 11x10। सो आप बोल सकते हैं 110 वर्सेस 120 स्क्वायर फीट। सो किड्स रूम दोनों में 10 स्क्वायर फीट का फ़र्क है। आपका अल्टीमा में 10 स्क्वायर फीट बड़ा है। थर्ड बेडरूम पे आ जाते हैं। दिस थर्ड बेडरूम इट्स नॉट 14x10, 140 स्क्वायर फीट नहीं है, यहाँ पे वॉल स्पेस गिरता है। तो आपको जो इफेक्टिव स्पेस मिलता है 130 स्क्वायर फीट से 132 स्क्वायर फीट का मिलता है। तो 130 स्क्वायर फीट के स्पेस में वर्सेस यहाँ पे थर्ड रूम इज अमेजिंग 17x10। So this guest room is 17x10. This is around 170 square feet versus 135 square feet, 130 square feet. So आप सोचिए 35 स्क्वायर फीट का डिफरेंस है। अगेन किड्स बेडरूम आपका 10 स्क्वायर फीट बड़ा था अल्टीमा में, बट आपका जो गेस्ट है, थर्ड रूम है, पेरेंट्स रूम है, स्काईकोट में बड़ा है अराउंड 40 स्क्वायर फीट। सो टोटल रूम्स आपके स्काईकोट में अभी दोनों बड़े हो गए, दैट इज 30 स्क्वायर फीट का डिफरेंस है। मास्टर बेडरूम पे आ जाते हैं। मास्टर bedroom is 14x12 with extra space for your wardrobe dresser. So that is around 35 square feet with 168 square feet of space for your master bed. It's good enough. आप अगर टोटल एरिया निकालेंगे 200 स्क्वायर फीट निकल के आता है। एम्पल इनफ, गुड इनफ। स्काई कोट का जो मास्टर बेडरूम है दैट इज ऑल्सो अमेजिंग। इट्स अराउंड 17x10 फीट 6 इंचेस। तो आपको अराउंड 175 स्क्वायर फीट मिल रहा है, प्लस अ फॉयर एरिया, अ पैसेज ऑफ अराउंड, जहाँ पे आप अपना आप अपना वार्डरोब सेटअप कर सकते हैं काफ़ी अच्छा। एंड स्पेशली फॉर वुमेन दे लव दिस काइंड ऑफ अ सेटअप। तो आपको अराउंड 20 स्क्वायर फीट यहाँ मिल रहा है और 170 यहाँ मिल रहा है। तो अगेन नॉट अ ह्यूज डिफरेंस, बट दिस इज अराउंड 190 टू 195 स्क्वायर फीट। अल्टीमा में आपका 200 स्क्वायर फीट है, तो ऑलमोस्ट 8 से 10 स्क्वायर फीट बड़ा है मास्टर बेडरूम। बट इफ़ यू लुक इन टू दिस, अल्टीमा में एक यूटिलिटी, एक सेपरेट बैल्कनी है, सो दिस मेक्स द मास्टर बेडरूम बेटर। तो हॉल एंड मास्टर बेडरूम ऑफ कोर्स इज बेटर इन अल्टीमा। 3 रूम्स की प्रॉब्लम है, बट देन सम पीपल आर ओके विद दैट। एंड 2 रूम्स डेफिनेटली क्लियर विनर इन स्काई कोड। वॉशरूम स्टैंडर्ड है 5x5 x 8, 5x8, 5x8, एज यू गैस नो DLF वो ही देता है, एंड मोस्ट ऑफ द बिल्डर्स वही देते हैं 5x8 के। यहाँ पे आपका जो मास्टर वॉशरूम है 8x6 का है, तो इट्स 48 स्क्वायर फीट। तो आपको एक बाथ टब आ सकता है, जो बहुत लग्जरी का पार्ट है काफ़ी लोगों के लिए। इन अ मास्टर बेडरूम यू कैन हैव अ 6 फीट प्रॉपर बाथ टब, जो DLF ने आपको प्रोविजन दिया है। सो आपके ऑलमोस्ट सेम है एवरीथिंग, बट देन एक मास्टर वॉशरूम आपका बड़ा है। सो फॉर मी, इफ़ यू आस्क मी, स्टिल अल्टीमा का लेआउट अच्छा है। इफ़ आई इग्नोर 3 रूम्स बीइंग टुगेदर, आई स्टिल थिंक DLF Ultima's लेआउट इज अमेजिंग। किचन को ओपन किया जा सकता है, एंड स्टिल आई थिंक इट्स नॉट अ बैड किचन। आई ऑल्सो कुक माई सेल्फ, बट देन ऑफकोर्स फॉर होम मेकर्स थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस शायद लगता होगा, बट देन इट्स नॉट अ बैड किचन। सो yeah, the layout is good for me. Skycode is also an amazing layout. Guest room separate, amazing thing. And the balcony is also decent enough, a long running balcony. So let's come to the last part. Now, this is something that I provide that in my consultation, but as you guys know, we are now doing something differently. So it's a long-term livability, density and investment perspective. आप लोगों को पता है काफ़ी लोग न्यू गुड़गांव की तरफ देख रहे हैं बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट दैट हैज़ गॉन ऑन। आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे प्लान है, एक्सप्रेस वे भी खुल गया है। सो अल्टीमा वर्सेस स्काईकोट वर्सेस न्यू गुड़गांव लो राइज फ्लोर्स, DLF 91, 92 and 93, जो जिसकी बजट में आता है they can look into it. So as Gurgaon evolves, buyers are realizing that price per square feet alone does not define long-term quality. You guys know new launches में मैंने आपको clear message दे रखा है, nobody, not even a single launch is good enough for the current investment cycle that you have. It's already peaked out in a way, and तो लोगों को अब समझ आ रहा है कि प्राइस पर स्क्वायर फीट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या लॉन्ग टर्म क्वालिटी डिफाइन नहीं करता। क्या डिफाइन करती हैं चीज़ें? कितना डेंस है प्रोजेक्ट, कितना ब्रीदेबल है एनवायरनमेंट, क्या स्ट्रक्चरल लाइफ स्पैन है। स्ट्रक्चरल लाइफ स्पैन इज ऑल्सो अ बिग पार्ट। मैंने इसलिए आपको स्काई कोट में बोला 12-12.5 हज़ार है, बट उसका मुश्किल से 15-20 साल है, मे बी 20-22 साल होंगे। बट देन इट मैटर्स वेयर आर यू इन्वेस्टिंग योर मनी, वेयर आर यू टेकिंग द डिसीजन। आपके आने वाली जनरेशन, आप खुद और आपके जो पेरेंट्स हैं, दिस इम्पैक्ट्स अ लॉट। कितना फ्यूचर प्रूफ है, क्या होता है आफ्टर 25 to 30 years. I have already shared the links in comments. You can look into that to get more idea and you can connect with me.
कोर कंपैरिजन टेबल हम छोड़ देते हैं, बट जो लो राइजेज हैं, डीएलएफ इनक्लेव, गार्डन सिटी फ्लोर्स, ये काफ़ी अच्छे ऑल्टरनेटिव्स हैं अल्टीमा और स्काईकोट के. इफ़ यू हैव अ डिसेंट बजट, you can get ample enough space, you can get a basement, you can get a shared terrace or a shared terrace walkaway. And आपको जो अप्रॉक्स लाइफ स्पैन है, आपको किसी में आपको कन्वेंशनल आरसीसी है, किसी में आपको माइवन है, इनक्लेव में आपकी माइवन है, कुछ आपके जो 91 92 है उनमें कुछ आपके कन्वेंशनल आरसीसी हैं. तो आपका 50 60 70 ईयर्स तो कहीं नहीं गए लो राइज में, एंड 100+ ईयर्स भी हो सकता है. बल्कि प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल आपका स्काई कोर्ट में 20 साल है, एंड पीपल आर स्टिल कंपेयरिंग दीज की 20 25 ईयर्स है, एक जगह 100 ईयर्स है. तो वो भी प्राइस पे आपको अभी में भी नहीं दिख रहा हो, बट लॉन्ग टाइम पे दिखेगा. एंड प्लीज जस्ट बी अ लिटिल ओपन टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, बिकॉज आई हैव कनेक्टेड विद अ लॉट ऑफ पीपल, एंड मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें एक समराइज वे में बता रहा हूँ. अप्रॉक्स स्ट्रक्चरल लाइफ स्पैन इज 30 ईयर्स प्रैक्टिकल है आपका अल्टीमा में. रिकंस्ट्रक्शन रिस्क मॉडरेट है, स्काई कोर्ट में हायर है, आपका डीएलएफ लो राइज फ्लोर्स में लोअर है. सो फ्यूचर डेंसिटी सारी चीज़ें कंट्रोल्ड है, प्लस आपको लैंड भी मिलता है. एंड दीज आर कम्युनिटीज एज वेल. आई हैव ऑलरेडी मेड अ लॉट ऑफ वीडियोज, यू कैन गो एंड चेक आउट द प्ले लिस्ट. The important structural reality most buyers ignore. One of the misconceptions in Indian real estate is all residential assets age similarly. They do not age similarly. It's very important to understand. हाई राइज जो रियलिटी है लाइफ साइकिल की, वो है प्रोजेक्ट्स लाइक अल्टीमा, स्काई कोर्ट, मोस्ट एनसीआर हाई राइजेस जनरली ऑपरेट विद इन अ प्रैक्टिकल प्रीमियम लाइफ साइकिल ऑफ 20 to 35 ईयर्स. कोई बहुत ही अच्छा बनाया तो 40 ईयर्स हो गया, 45 हो गया, बट दैट इज वॉट द हाई राइज प्रीमियम लाइफ साइकिल इज. दैट्स वाई माइवन कंस्ट्रक्शन आया ना, कि 50 to 60 ईयर्स हो या 80 ईयर्स हो. और डिपेंड करता है आपकी जो भी कंस्ट्रक्शन हो रखी है उसमें HVAC सिस्टम है, क्या स्ट्रक्चरल स्ट्रेस हो रहा है उसको, मेंटेनेंस क्वालिटी क्या है, वाटर प्रूफिंग क्या है, फसाड कैसे एज हो रही है, प्लम्बिंग कैसे हैं शाफ्ट्स उसके, और रेजिडेंट्स एसोसिएशन कैसे है आपका RWA, सारी चीज़ें. तो बहुत चीज़ें बेटर करती है. अल्टीमा अगेन इज बेटर एजिंग प्रोबेबिलिटी 30 ईयर्स में भी. DLF द वे दे मेंटेन इट्स अमेजिंग, एंड इट इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट बिल्ट हाई राइजेज इन न्यू गुड़गांव एंड द होल ऑफ गुड़गांव एज वेल. बट स्टिल उसका साइकिल इज 25 से 30 साल. इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इज 8.5 आउट ऑफ 10, इवन दो इट्स नॉट माई वन, बट स्टिल मैटर्स. स्काई कोर्ट में फास्टर एजिंग रिस्क है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इज लिटिल ओके, 6.5, इवन दो द डिज़ाइन इज अमेजिंग. आपका अप्रॉक्स साइकिल प्रीमियम लाइफ साइकिल 20 से 25 ईयर्स है. तो 12-12.5 हज़ार का रेट उसको जस्टिफाई कर रहा है कि हाँ रेट सही है. बट आप क्यों एक चीज़ लेंगे जो 20 साल में रिकंस्ट्रक्शन में जाएगी, और आपको पता है जब रिकंस्ट्रक्शन में जाएगी सोसाइटी आपको मूव होना पड़ेगा. इफ़ यू डोंट नो, गो एंड चेक आउट इन मुंबई व्हाट हैपेंस. प्लस आपको जो डेंसिटी मिलेगी, बिल्डर कोई भी बनाएगा चाहे DLF ही है, तो आपको डबल से ज़्यादा डेंसिटी मिलने वाली है. So why low rises are gaining long-term appeal? Projects like Enclave 93, Garden City Floors, a lot of plotted low-rise ecosystems. They have community living, but they have a fundamental different philosophy. They have land-oriented assets. Land आपको cover होता है. Lower density ecosystem है. You can go and check out the videos. Easier to maintain and offer structurally longer lasting. सो माइवन एंड लो राइज भी जब आ जाता है तो 50 to 100 ईयर्स का यूजेबल लाइफ स्पैन होता है. तो वो मैटर करता है. रिकंस्ट्रक्शन जैसे मैंने आपको बताया था, हिडन डेंसिटी प्रॉब्लम. अगर ओल्ड हाई राइज आपका रिकंस्ट्रक्शन में जाएगा तो आपके ज़्यादा यूनिट्स ऐड होंगे, डेंसिटी बढ़ेगी, ओपन श्रिंक होगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो इवन दो अल्टीमा टुडे फील्स हाईली ब्रीदेबल, स्काई कोर्ट फील्स बैलेंस्ड. फ्यूचर डेवलपमेंट साइकिल जो अभी नहीं है, अभी आप अच्छे से रहेंगे. एंड करेंटली एज आई एम रिपीटिंग दिस, अल्टीमा फॉर मी इज वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिटीज टू लिव इन होल ऑफ गुड़गांव, होल ऑफ इंडिया एज वेल. आई कैन इवन से दैट. बट स्टिल फ्यूचर रीडेवलपमेंट साइकिल है, तो डेंसिटी, ओपननेस एंड एक्सक्लूसिविटी ऑल्टर होनी ही है. येट हाई राइजेस स्टिल मैटर टुडे, एंड बाय स्काई कोर्ट स्टिल हैज वैल्यू एट 12,000. दैट ऑल्सो मैटर्स बिकॉज न्यू लॉन्चेस आपके 17 से 18 पे आ रहे हैं. यू गैस नो, आई हैव ऑलरेडी मेड द वीडियोज. आपकी आपका रेशो जो आपको मिलता है कार्पेट टू सुपर बिल्टअप, आपको पता है क्या रेशोज आ रहे हैं, और आपको स्काई कोर्ट में क्या है. DLF इकोसिस्टम है, लिवेबिलिटी स्टिल है, सीपेज कंसर्न से सारी चीज़ें हैं, बट अ रिलेटिवली अफोर्डेबल प्रीमियम एंट्री इकोसिस्टम. तो किसी को हायर एज चाहिए, ब्रांड का चाहिए, डिसेंट लोकेशन पे चाहिए, तो इट्स नॉट बैड इन 2.25 CR. But Ultima still commands respect because at 17,000 square feet, it still competes strongly because of open space ratio, green areas. इतनी greenery, I haven't seen in a lot of products in all over India. Density remains unusually low, बहुत low है.
आपका क्लब हाउस इज स्ट्रॉन्ग, क्वालिटी इज अमेजिंग, प्रीमियम है, तो लोगों को अच्छा लगता है। तो अगेन दिस होल पॉइंट इज आपका लो राइज में आपको लॉन्ग टर्म लिवेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी, स्ट्रॉन्गेस्ट लैंड ओनरशिप मिलती है आपको, हाई राइज में आपको एक इकोसिस्टम मिलता है। इट्स समथिंग यू हैव टू बी आई एम जस्ट शेयरिंग द पॉइंट्स कि आपका यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वॉट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन इन द मार्केट, एंड इफ़ यू चेक आउट द डेवलपर्स एंड सबके इंसेंटिव किस जगह है, what they actually want to boost, and including the developer brokers, उनका कहाँ चीज़ें ज़्यादा बेनिफिट देती हैं, कहाँ इंसेंटिव ज़्यादा है। तो यू कैन लुक इनटू दैट, यू कैन कनेक्ट विद अस, एंड नेक्स्ट पोल विल बी आउट एज वेल। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, टेक केयर।